So I was looking for a particular kind of role where it suits me. I'm not a person because television is very real, very it's every day. So you can't fake it a long time. So it should relate to you. What I feel. This story particularly is very interesting, as you saw in the promo. It has a lot of layers, conflicts, and a beautiful love story behind it. People think that I'm a very harsh man or because I'm a very tough guy. Well, I think I'm a very highly romantic person. Pratik knows. And what would I say? Because the first image which people build of mine is he's that macho, tough guy and good for a cop role or good for a villain's role or something like that. So अगर hero बनना है तो ये शो देखना करना पड़ता है. We look forward to seeing this new side of you, Sharad. Can we have the next question, please? Can somebody throw the lights on the title? Because प्यार की जर्नी में आपसे होके शुरुआत तुम तक आती है. यहाँ पे बात तुमसे तुम तक हो रही है. Can somebody from ZTV? Pratik, you wanna take that? So, मैम जैसा कि हम लोग शुरुआत में भी जब इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहे थे, तो एक ही विचार था कि प्यार करने के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी बदलने की जरूरत नहीं है. वो इंसान जो आपको आप जैसे हैं वो स्वीकार करे, वो सच्चा प्यार है. सो दैट इज वाई तुमसे तुम तक. मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, तुम जैसी हो तुम वैसी हो. हम दोनों का सफर एक दूसरे के लिए. A very evolved explanation. Anybody else in the room? Please feel free to ask. Yes. Can somebody pass the mic to her right in the front? Hi everyone. Hello. The glimpse look beautiful. I would like to say myself Kavisha from Bollywood Helpline. Sir, I remember जब मैंने लिस्ट में आपको देखा था, you were there to promote your song जिसमें you played Shivaji, right? And वहाँ पे Chhatrapati Shivaji Maharaj. Yes, I didn't play yes. Chhatrapati Shivaji Maharaj though. I was one of his warriors. We got it wrong, but वो गाना Chhatrapati Shivaji Maharaj के ऊपर. हाँ जी, exactly. So वहाँ पे you briefly heard that everyone has started to relate you to Chhatrapati Shivaji Maharaj. How does it feel? Your physique and everything is like that. And वहाँ से यहाँ एक soft boy billionaire who is looking for love. ये जो switch है, how did you work on this one? And what do you expect when people see you in this role? To be very honest, that is actor's job basically to shift roles. You can't continue with one role. And I have said this 100 times that I can't even reach to his feet. I'm a very small, tiny man. It's my fortune that I have played Maharaj's role in Tanaji. The kind of love I got from there, it was overwhelming, and I think that opportunity you will get in once, maybe or twice in a lifetime. So I would love to do it again in future. But as an actor, obviously you have to experiment, you have to do different kind of roles, and that's my mantra. If you want to grow as an actor, if you want to learn, you have to do different roles and try different things. So so I don't want to be bound with the image. I want to try new things. So this is again a very wonderful, beautiful character, very layered, very complicated. As right now in promos it's not seen, but I can promise you it's pretty complicated. Can we move to the next question, please? Yeah. Please pass on the mic right at the center. Yeah. Hi, this is Abhishek from Film Beat. My question is for Vandana ma'am. Vandana ma'am, we love you. You have entertained us, you have made us laugh, you have made us cry. So I have to ask you one thing. What is that one thing that attracted you towards this character? And what according to you is the USP of this show? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड शो के लिए अट्रैक्ट हुई उससे पहले मैं प्रतीक और पार्थ के लिए थी. सो ये मेरे लिए फैमिली है. जैसे शरद ने कहा कि इट्स लाइक होम कमिंग. इतने साल नहीं करना, वो कॉन्शियस एफर्ट ऐसे नहीं था और ऐसे था भी, क्योंकि जो भी काम आता था वो ऐसा नहीं था कि पार्थ और प्रतीक लेके आए. तो जब इन्होंने मुझे कहा तो मैंने आगे कुछ पूछा भी नहीं. मैंने कहा नहीं मुझे करना है. बाद में उन्होंने कहा कि एटलीस्ट सुन तो लीजिए कि क्या है. द थिंग इज कि इट्स अ ब्यूटीफुल शो. ये कॉन्सेप्ट आया नहीं है
और अगर आया है तो इस तरह से नहीं आया है जैसे यहाँ दर्शाया गया है। जब आप सीरियल देखना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी अलग है। इसके अंदर इतने सारे इमोशंस हैं, इतने अलग अलग हर दूसरा कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से अलग है। कैरेक्टर्स की जर्नी क्या है, इंटर रिलेशनशिप्स क्या है, लेयर्ड है बहुत सारा, और सीक्रेट भी है इसमें। जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो बहुत ही बढ़िया है। और अगर मैं अपनी बात कहूँ तो इतना अच्छा शो हो और मैं उसका हिस्सा ना बनूं, ये हो नहीं सकता। मेरी जगह कोई और होता तो वो भी ये ग्रैब कर लेता। गायत्री देवी एक ऐसी घर की हेड है जो सबको प्यारी है। शी इज सो ग्रेसफुल। इतने सारे भाग दौड़ की जिंदगी में भी उसके अंदर एक स्टिलनेस है। पूरा बिजनेस हैंडल करने में मदद करती है, और उसके जीवन का एक ही ध्येय है कि आर्य को कहना और मनाना कि तू शादी कर ले। बिकॉज किसी भी एज में, आज सलमान खान को भी हम बोलते हैं कि सलमान खान प्लीज शादी कर लो, तो आर्य तो बहुत छोटा है। तो उसकी लाइफ का एक ही ध्येय है एज ऑफ नाउ कि आर्य तू शादी कर ले। और जब उसकी लाइफ में अनु आती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। तो ये बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई गई है। और आपने जिस तरह के ये आपने ये जो टीजर्स, ट्रेलर्स या जो भी आप कहना चाहो वो आपने देखे, वो बहुत ही खूबसूरती से दिखाए गए हैं। सो देयर आर सो मेनी लेयर्स इन दिस। एंड जैसे मैंने कहा कि अगर मैं नहीं करती तो कोई और कर लेता, तो कोई और क्यों करे, मैं ही कर लूँ। I think in the center table we had a question. I saw raising. Hi. सबसे पहले तो congratulations to all of you and all the very best. We are so eager to see this जोड़ी. निहारिका, my question is from you. काफी सारे scenes जो है वो दिल्ली में shoot हुए हैं. Like me being from Delhi, I know how hectic is it to shoot over there. So कैसा लग रहा था वहाँ पर shoot करने में, और क्या आपको कैसा लगा उधर कि वहाँ पर shoot करने से कितनी authenticity बढ़ी आपके narrative की? आई फील ऑब्वियसली जब हम रियल लाइफ लोकेशंस पे जाके शूट करते हैं तो वो दिख कर आता है, जैसे आपने सबने देखा ही होगा। और बहुत मज़ा आया उस शेड्यूल में। बहुत गर्मी थी ऑब्वियसली, बट हमारी प्रोडक्शन ने हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। और रियल लाइफ लोकेशन में शूट करने का एक अलग ही मज़ा होता है। एज एन एक्टर आपके लिए चैलेंजिंग भी होता है, मतलब एक बिजी स्ट्रीट पे आपको शूट करना है। तो इस शो से मैं आई थिंक काफ़ी कुछ सीख के निकलूँगी। मतलब ये मेरे सब्र का फल है दिस शो फॉर श्योर। चक्कर भी आया तो बेहोश भी हुई थी गर्मी से, सॉरी। यस, बट शूट तो करना ही है। शो मस्ट गो ऑन। सो That's the spirit. We have one more question, the last question. Yeah, hello everyone. Shilpa here from Mayapuri magazine. मेरा not सवाल, Mayapuri from China. थैंक यू। सुमा जी, मेरा सवाल आपसे है। शो में तो हमने देखा कितनी प्यारी केमिस्ट्री लग रही है माँ और बेटी की। ऑफ स्क्रीन कैसा बॉन्ड है आपका और निहारिका का? उससे ज़्यादा स्क्रीन से ज़्यादा बॉन्ड है हमारा। और इसको मैं हमेशा, जैसे माएँ टोकती है ना, खाना ठीक से खाओ, छोड़ो मत, तो मैं इसके पीछे पड़ी रहती हूँ, ये मेरी गोद में बैठी रहती है सेट पे। और अगर मैं किसी और को कह दूँ कि वो मेरी फेवरेट बेटी, तो मेरा गला भी दबाती है कि ये आपकी फेवरेट है, बताओ मैं हूँ बोलो, तो मुझे कबूल करना पड़ता है। तो ऐसी हमारी केमिस्ट्री है, हम साथ में ही खाना खाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। बता दो, आपको लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो, लेकिन शो की असली स्टार है, बता रहा हूँ ये। एवरीबडी इज अ ह्यूज फैन ऑफ हर्स। और ये तक ऐसे हमेशा कुछ खाने के लिए लेके आती है। हम सब वेट करते हैं कि उस दिन सोमाजी के साथ शूटिंग करेंगे, तो एटलीस्ट मेरा तो बहुत ख्याल रखती है। और शी इज रॉक स्टार। आप जब शो देखोगे ना, यू विल फॉल इन लव विद हर। मैं तो ऑलरेडी एक अलग लव स्टोरी चल रही है वैसे। That brings us to the end of our Q&A. You can clearly see it's a very cute family. और हम इन लोगों को देखने के लिए स्क्रीन पे बहुत बेसब्री से बेकरार हैं। Yeah? So I request all my photographer friends to step forward. We're going to go in for a photo op. Can we have a nice group picture and then the